Welcome to all of you in my today's session for class 8 chapter 6, in which we are discussing over the major crops and agricultural development. Today is my last session for this chapter, and now I am going to start my class over the discussion of agricultural development in USA. In my previous session, we discussed about the agricultural development in India, in which we discussed about the green revolution, white revolution, how we increased the production of the crops, how we increased the milk production of milk and milk product, and after the completion of the discussion over these things, we finished our journey on that. And I told it to you that in my next session we will start my journey from agricultural development in USA. So first of all, I just want to give you some important fact that only USA USA is also knowing as the developed country, powerful country. So according to all these proverbs used for USA, the USA brand, you have to keep it in your mind that United States of America is not agro-based. Like India is going to be considered as an agro-based country, USA is not going to be considered as agro-based. So first thing, USA is not agro-based country, and only 20% of the total land of USA is under cultivation. USA के कुल भूमि का 20% ही कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, and due to resources, this one is the fact that due to good resources, better development techniques, United States of America used that 20% land in very good manner. अमेरिका अपनी उच्च तकनीक, आधुनिक सुविधाओं के कारण जितने भी भाग में कृषि का कार्य करता है, उससे वह महत्तम लाभ उठाता है. In fact, on the agricultural basis, we can say that the complete techniques, whatever is using by United States of America, is far developed with respect to India. कृषि के लिए भी जो साधन अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वह भारतीय तकनीक से काफी आगे है. वस्तुतः जो एक मैं मौलिक अंतर पाता हूँ, वह सबसे बड़ी बात है, the agricultural work of India is completely based upon human activities, but in USA they tried to reduce the enforcement of men or people. वो लोगों के भागीदारी को कम से कम करने में लगे रहे, और उसके लिए वो मॉडर्न टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स इत्यादि का सहारा लेते हैं. अब चर्चा होगी कुछ बातों पर कि भाई मतलब क्या है, क्या विशेषता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी in USA with respect to India. The first thing is bigger farms. In the USA, the size of an average farm is very large. अब इसको सरल भाषा में समझोगे ना तो अंग्रेजी में लिख लो. Actually, what is happening in India? If actually I am a North Indian guy, so definitely I am hoping that because I am using English as well as Hindi in my speech, so definitely like northern people will listen my voice more carefully with respect to South Indian people. So actually in our society what is happening? We have to face a pathetic condition of division in the family. घरों में बंटवारा होता है, बात सही है, और बंटवारा होता है तो स्वरूप कैसा होता है, यहाँ पर 10 कट्ठा है, 2 भाई है, 5-5 कट्ठा लेंगे, यहाँ 5 कट्ठा है, 2.5 कट्ठा लेंगे. एक्चुअली क्या होता है कि इन आवर सोसाइटी वी आर नॉट हैविंग अ लार्ज एरिया ऑफ फार्म्स. हम लोगों के माइट बी पॉसिबल दैट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ लाइक ह्यूज large size of or
इन लार्ज डिजिट, कि भाई बहुत बड़े आंकड़े होंगे कि हमारे पास कृषि के ज़मीन बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी उपस्थिति जो होती है वो टुकड़ों में होती है। दे आर प्रेजेंट इन द पीसेस फॉर्म, और इसके कारण हम लोग कृषि की बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि छोटे जगहों पर बड़ी बड़ी मशीनरियाँ नहीं उतरेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। और अमेरिका में क्या है कि बड़ा बड़ा भूखंड होता है, एक एक का हिस्सा जो होता है बड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण वो जब लार्ज स्केल पर कृषि करते हैं तो उनका इनपुट कॉस्ट घट जाता है, लागत घट जाता है। एंड ड्यू टू हैविंग सफिशिएंट एनफ लार्ज स्पेस दे कैन यूज मशीनरीज, वो अपने मशीनरीज का भी यूज कर सकते हैं। अभी 2 कट्ठे की जमीन में हार्वेस्टर आता है क्या? नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। डेफिनेटली मैंने आपको अभी कह दिया, भारत में आज भी मनुष्यों पर आधारित, लोगों पर आधारित कृषि व्यवस्था ही चल रही है, जिसमें धान लगाने के लिए, गेहूं लगाने के लिए लोगों को मनुष्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन अमेरिका जो है अधिकांश कामों को मशीनरीज बेस्ड पे कराता है। एंड दिस वन काउजेज, इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो उनका इनपुट कॉस्ट भी घटता है, लागत मूल्य भी घटता है, और दूसरा उपज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप whenever you will use machinery, then they will like do all the activities like farming, plantation and harvesting and all in proper manner, and we will get more crops with respect to like human activities based crop. Natural resources. The irrigation facilities are well developed. The specialized production of crops in specific areas has given rise to distinct crop belt such as corn belt, wheat belt. वहाँ एक क्षेत्र है कि ये क्षेत्र है, इधर खाली मक्का होगा, इधर सिर्फ गेहूं होगा। हम लोगों के साथ क्या है, कहीं आप देखिएगा कि चावल लगा हुआ है, कभी उसके बगल वाला जो है चावल के बाद गेहूं लगाएगा, लेकिन बगल वाला जो है बीच में मूंग लगा देता है। लेकिन वो लोग क्या है ना कि एक ही टाइप का सिमिलैरिटी रखता है बेल्ट में, वो बेल्ट डिक्लेयर किए हुए है लार्ज एरिया को कि दिस बेल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, मक्का, दिस बेल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो ये चीज़ें जो है ना अमेरिका को कुछ विशिष्ट स्थान दिलाती हैं। एंड कॉम्परेटिव असाइनमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड यूएसए, तो उसमें वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। द साइज ऑफ एवरेज इंडियन फार्म इज वेरी स्मॉल, चर्चा हुई। साइज ऑफ द फार्म इन यूएसए इज क्वाइट बिगर। The land is intensively cultivated. The land is extensively cultivated. Double cropping and multi cropping are common. भारत में तो बहुत बड़ी समस्या है कि 2 फसला 3 फसला, लेकिन वहाँ क्या है, सिंगल क्रॉपिंग इज द यूजुअल प्रैक्टिस। द यूज ऑफ मशीन, मैंने बार बार चर्चा की, इज लिमिटेड। यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा है। लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूव सीड्स। यहाँ पर आज भी हरित क्रांति के बावजूद हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का तरीके से यूज करना नहीं जाने हैं। वो ले लिया बर्तन में और उसको फेंक दिया, बट they are doing all the things in the scientific manner. The farmers are generally poor and not well educated in India, but in USA farm owners are rich and educated, जिसके कारण क्या होता है वो टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, आज भी समाज में जो थोड़ा नहीं कुछ कर पा रहा है वही खेती कर रहा है, अदरवाइज द पीपल आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड द बिजनेस सेगमेंट। लेकिन अमेरिका में आज भी अमीर लोग जो है खेती करते हैं, चूंकि उनको पता है कि धन आने का मुख्य स्रोत जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप ही है। सारे व्यक्ति कमा क्यों रहे हैं? खाने के लिए। दिस इज द फैक्ट। The yield of crops is generally low. The yield of crops is high. This one is the basic difference between the availability or the presence or the connectivity of farming and the country. तो भारत के तुलना में और अमेरिका के तुलना में। अब इरिगेशन इन इंडिया, तो इरिगेशन इन इंडिया पर इसमें आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली देयर आर few types of method of irrigation for the agricultural land. Either you can have boring, you may have boring in your agricultural land, या तो बोरिंग होगा। दूसरा, either we have the connectivity of canals, और फॉर एन एग्जाम्पल अभी कैनाल का ही उदाहरण है कि जो आपके इंदिरा गांधी कैनल है उसके कारण जो है राजस्थान में भी जल की व्यवस्था है। सो बाय द यूज ऑफ कैनल्स और बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैनल्स वी कैन यूजुअली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड ड्यू टू दैट द cultivated land, the area of the cultivated land will increase. This one is the fact.
what we have to keep it in your mind. एंड बोरिंग के विषय में आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोरिंग में तो आप जानते हैं कि खेतों के बीच में बना दिया जाता है, उसको कवर्ड अप कर दिया जाता है और अच्छे से रखा जाता है. तीसरा, वी कैन यूज़ द वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स नियर बाई द एग्रीकल्चरल लैंड विद द हेल्प ऑफ पंप एंड ऑल, कि हम वहाँ से लेके और अपने खेत के पटवन का काम कर लें. नदी का भी लाभ हम लोग उठाते हैं, नदी से पानी लेके. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट व्हाट वी हैव टू कीप इट इन योर माइंड. And by the discussion of that, we completed chapter number 6, agricultural crops of class 8. I hope that after the completion of major crops, you will note down all the important facts and you will solve all the question and answer. In my next session, we will start discussion over the classification of industries. Up to now, stay safe, get well soon, study hard, make notes, solve question and answer. Thank you. Have a great day.